Very good morning to all. I'm here to teach you about myself. First of all, I will give my introduction. My name is Jyoti Kiran. I have passed MSc Food Processing and Management in the year of 2022 from BHU. Now I am a housewife as well as a teacher, and today I'm going to explain the topic food preservation. Here in this presentation, I will discuss about the definition of food preservation, with principle of food preservation, with some of the types of food preservation. Let us look further. Definition of food preservation: the science which deals with the process of preservation or spoilage of foods and allowing it for the further use is known as food preservation. फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है साइंस की जो हमारे फूड को स्पॉयलेज होने से प्रिवेंट करती है by adding some of the extra techniques, either by removal of water or by adding of temperature, and or by adding preservatives, or making the changes by giving the ionizing radiations, etc. ये इसका फूड प्रिजर्वेशन का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है कि वो हमारे फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ा के रखे, ताकि हम फॉर द फ्यूचर यूज उस फूड को फ्यूचर में यूज कर सके, उस फूड कमोडिटी को आगे हम यूज कर सके. There are different principles which allows the preservation of food. Principles: preservation or delay of microorganism micro decomposition, keeping out micro organism or removing microorganism already present in the food by the process of asepsis, or removal of microorganism through filtration, या फिर hindering of growth and activity of microorganism through refrigeration या dehydration या addition of a chemical into the food, या फिर killing of microorganism can also prevent spoilage and helps in preservation by boiling or by using a different radiations. Second principle is preservation or delay of self decomposition of food. सेल्फ डिकम्पोजिशन कैसे हम लोग डिले कर सकते हैं? बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इंजाइम, और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंजाइम हम लोग ब्लैंचिंग के प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जो कि हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे. एंड बाय प्रिवेंटिंग और डिलेइंग बाय केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. लो टेम्परेचर. Low temperature microbial growth and enzyme reaction are retarded in the food stored in low temperature. माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर इंजाइम के रिएक्शन को हम लोग रिटार्ड कर सकते हैं टेम्परेचर कम करके. मेनली इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम फूड के जो हीट है, मतलब ऐसा टेम्परेचर है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसको हटा करके उसको उस टेम्परेचर को कूल करेंगे, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे ताकि वो प्रोडक्ट कूल हो, और फिर उसको डिटोरिएशन या स्पॉइलेज से बचाएंगे. इसमें सेलुलर स्टोरेज क्या है कि सेलुलर स्टोरेज जिसमें किसी भी फूड कमोडिटी को हम अंडरग्राउंड रूम्स में स्टोर करते हैं, टेम्परेचर दैट इज लोअर देन द 15 डिग्री सेल्सियस. मेनली रूट क्रॉप्स जो होते हैं, पोटैटोज, ओनियंस, एप्पल्स, ड्यूरिंग can stored for a limited period during the winter month, under the cellular storage. Then after we come to refrigerator or chilling. Refrigerator or chilling.
इसमें जो हम लोग टेम्परेचर ऑब्टेन करते हैं बिटवीन 0 टू -5 डिग्री सेल्सियस को ऑब्टेन करते हैं मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री को स्टोर करते हैं। मेनली हम लोग के जो घर का रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हम लोग ये फंक्शन देखते हैं कि हम लोग कैसे अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग फ्रीजिंग क्या है कि किसी भी फूड कमोडिटी को अगर लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखना है तो हम फ्रीजिंग करते हैं। फ्रीजिंग में भी हम 3 टाइप के फ्रीजिंग करते हैं, स्लो फ्रीजिंग, क्विक फ्रीजिंग एंड स्लो फ्रीजिंग, क्विक फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रो फ्रीजिंग। स्लो फ्रीजिंग नॉर्मली हम घर पे करते हैं जिसकी टेम्परेचर -4 टू -29 डिग्री सेल्सियस होती है 3 to 72 आवर्स के लिए। स्लो फ्रीजिंग को हम लोग सॉफ्ट फ्रीजिंग भी कहते हैं। और देन आफ्टर दैट इज क्विक फ्रीजिंग। क्विक फ्रीजिंग को बोल सकते हैं कि इट इज अ फास्ट freezing process where the temperature lies between the -32 to -40 degrees Celsius. Here the rapid freezing is done. Rapid freezing is done to make fine crystals and inhibit freezer injury, sorry. Then after dehydro freezing, डिहाइड्रो फ्रीजिंग में हम लोग फर्स्ट किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं और फिर उसको फ्रीज करके रखते हैं। और इसमें कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, पैकेजिंग का भी, फ्रीजिंग का भी, स्टोरेज का भी। मेनली इसमें हम लोग कैंडीज वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं। हाई टेम्परेचर ऑल्सो नोन एज थर्मल फ्रीजिंग, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है उसमें एडिशन ऑफ हीट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग पास्चराइजेशन, हीटिंग अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस और हीटिंग अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे डिवाइड किया है। पास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग एम करते क्या, पैथोजेंस और स्पॉयलेस काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसमें टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ये मेनली हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। एक और है जो लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन है, उसकी टेम्परेचर है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर half an hours or 1 hours. Then after heating about 100 डिग्री सेल्सियस, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लांचिंग। इसका मेन मोटो क्या है कि इनएक्टिवेट करते हैं बैक्टीरियल इंजाइम को, और इसकी जो टेम्परेचर होती है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है, उसके इक्वल टेम्परेचर होती है। हम लोग क्या फ्रूट्स, मेनली वेजिटेबल्स को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, फर्दर फॉलोड बाय सडन कूलिंग, वॉशिंग और डिपिंग इनटू कोल्ड वाटर। This inactivate the bacterial enzyme. Third है heating above 100 डिग्री सेल्सियस और स्टेरलाइजिंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटली क्लीन करते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई होता है, दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स।